हम क्या कर रहे हैं? We are not understanding the law of attraction and law of karma. Always remember that law of karma comes before law of attraction. Means we have to attract very positive things. We have to attract all the good things in life. We have to attract perfect day. But back of the mind, always have this thing कि अगर वो नहीं भी हुआ, I accept it. Agar in case the thing is not happening, I accept it, because I will not get what I want. I will get what I deserve. You understand? You will not get what you want. You will get what you are. Means जहां पर है, जो हमारे साथ हुआ है, first accept it with love, no resistance. चाहे कुछ भी हुआ हो हमारी लाइफ में, कितनी भी बड़ी बात हुई हो, अपने आप से बात करनी है कि that is a result of my karmic account. It's okay. I accept it 100%. Wherever I am, I accept it. Right? So we'll meditate on this point, that how to surrender, how to accept things. Now this is practicality. This is not negativity. कि attract अच्छा करना. Let's say I visualize. Let's say I have an exam. So I visualize that I'm in a classroom. Everything is happening perfectly. Answers बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ. Now, if something happens, if any negative thing or any not so positive thing happen in that classroom, I accept it. I do not resist. If a teacher, if there is no fan, there's no electricity, there can be so many situations. I accept it. It's okay. सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होगा. When we start practicing this, 50% of stress, 50% of fear, negativity will go away. And it will give us the power to accept the present, accept the life, and accept whatever is happening to us. जो हमारे साथ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना, फिर आगे बढ़ना. तो अभी इसको शुरू करते हैं. उससे पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा है, who determines what I deserve? We ourselves determines what we deserve. Our actions, our in our karmic account, हमारे कर्मों के हिसाब किताब में we always think कि जो हम करते हैं वही, जो हम बोलते हैं वही, but there is a major chunk is जो हम सोचते हैं. We never think about what we think. We think कि उसे पता थोड़ी है मैं क्या सोच रहा हूँ. But thinking wrong is also creating a karmic account, and it will affect us in any way. So through meditation, we can clear all those karmic account. We can clear our all the negative things which we have sent to universe. We can convert it to positive. We can align with the universal energy, with truth, with God, and through that we can start healing ourselves. That doesn't mean situations will not come. Again, let me make it very clear. इसका ये मतलब नहीं है कि situations नहीं आएंगी, obstacles नहीं आएंगी. इसका ये मतलब है आएंगी, कोई बात नहीं. I will have the power कि मैं उससे affect ना हूँ. वो negativity मेरे अंदर नहीं है. I'll have the power in me to face it with grace, with love, with acceptance. तो मेरे मन में disturbance आनी बंद हो जाएगी. Right? So if in exam we are thinking for kids to get 90% but not coming, then it's what? It's students' ability or karmic account of us. Yours is never in आपका तो कभी भी karmic account बच्चों के उसमें नहीं आ सकता है. You are thinking 90%, it's expectation. But if it is not coming, of course, first of all पहले देखना है कि बच्चा तैयारी कितनी कर रहा है.
is kid preparing enough for 90%, and is kid happy enough, or are we forcing him to get exams because the exams are always mental pressure. आपने इतना उसे नेगेटिव भर दिया, इतना एक्सपेक्ट करा दिया कि आपको इतना लेना ही है, वहां जाके उसको स्ट्रेस होगा और वो नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट कि फिर से जो भी क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में लेंगे. पहले आप आराम से इत्मीनान से सुनिए, अपने मन में जाने दें. डोंट क्रिएट एनी रेजिस्टेंस फॉर योरसेल्फ, not for me, for yourself. Just listen with your true heart. Like a kid, it is going to help in many ways. There is no, contradictory things. Again, let me say it clearly. Law of karmic account comes before law of attraction. We have to think very beautiful things in our life. We have to create perfect, we have to visualize perfect life for us. But on the back of the mind, always say that even if it does not happen, I accept where I am. I accept जो भी मेरे साथ हुआ है, जो भी मेरे साथ हो रहा है, I accept it. This is result. This is the fruit of my karmic account. I'll clear it. I know the way now. I'll clear it. ठीक है? तो ये छोटा सा वो है. Now let's start with the meditation. तो if you are doing something, आप इसके साथ कुछ कर रहे हैं, तो please leave it. पूरा focus अभी के लिए for the next 15 minutes. Can we do it? Whole focus on this meditation commentary. आराम से बैठ के, ठीक है? कहीं और ध्यान नहीं, सिर्फ आराम से यहाँ पे बैठ के लीव एवरीथिंग, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट अगेन. इफ यू आर न्यू टू मेडिटेशन, कीप योर आइज क्लोज, बीच बीच में खोलिए. बट इफ यू आर डूइंग मेडिटेशन, कीप योर आइज ओपन. प्रैक्टिस doing it with your eyes open so that you can do it anytime, doing anything. You'll have the practice to take your intellect anywhere you want to keep it, right? ठीक है. So again, consider yourself to be a kid. एक बच्चे की तरह. Think about a kid. There's no filtration in a kid's mind. No boundary of beliefs. We have covered our intellect, our mind, our thinking with few beliefs. We have to remove them. So I keep my mind very open. No past baggage. I have tried that, I have tried this. Nothing. This is a new thing for me. I'm going to do it for sure, not try. If I'm saying I try, I have given up 50% already. So keep your mind open, ready for the new things to get in. Now talk to your mind that wherever you are wandering, come back. Come to this moment and experience the present moment. इस मोमेंट को फील करें. Check. Is there any kind of resistance in my mind? Any resistance? Take a minute and check. Any person, कोई बात जो पकड़ के रखी है, कुछ काम, any work, just think about it.
Feel the present moment. Hello. Morning, sir. How are you? Feel the life. Life is just this moment. No past, no future. No baggage of past, no worry of future. Just this moment. Am I happy in this moment? Can I generate happiness from within at this moment? Can I feel thankful for this moment to God? Can I feel gratitude to all the people around me for their love, support? Life is a privilege or a burden for me? Check. कोई ऐसी बात जो मन में रखी हुई है, ऐसे लोग, have I forgiven people completely or only at a surface level? What happens when that person's image, name come to my mind? Check, is there any kind of resistance, negativity about that person, situation, even to God? क्या मैं किसी को भी आज के टाइम में ब्लेम करता हूँ, कंप्लेन करता हूँ, ये सोचता हूँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया? Take your time, check. It's very subtle. Don't jump to answer. कुछ बातें हैं, छोटी छोटी हैं, पकड़ी हुई। लोग हैं पकड़े हुए हैं। ब्लेम गेम खेल रहे हैं। अगर ये सब है तो आई एम स्टिल in a cycle of karmic account. I have not closed accounts with them. First, let's start with ourselves. In front of you, bring the most positive, pure,
loveful self in front of you, अपने सबसे कंप्लीट स्वरूप को सामने लाएंगे। देखेंगे अपने आप को कि मैं बहुत खुश हूँ, पीसफुल हूँ, खुश हूँ, प्यार से भरा हुआ हूँ। अपने आप को आज तक जिन भी बातों में क्रिटिसाइज किया है, कर्ज किया है, मैं अपने आप को माफ करता हूँ। इट्स ओके, एवरीवन मेक्स मिस्टेक, आई हैव डन माई पार्ट। फ्रॉम नाउ ऑन I'll be very cautious about my thoughts, words, about myself. अब उन लोगों को सामने लाएं जो आपको लगता है they have done something bad with you, they have hurt you. उन्हें सामने लाएं, रिलीज करें उन्हें बोलें I forgive you, it's okay, I have the power to move on, I have the power to forgive you because I am connecting to my real self, inner self. I am generating enough power to forgive you. It's okay. Forgiving you is my gift to you. Moving on is my gift to myself. अब उन लोगों को सामने लाएं. Bring those souls in front of you with whom you think you have done something wrong. Ask them for forgiveness. Say it's okay. Let's close these chapters. I ask for forgiveness and I forgive you if you have done something wrong in my life. Not just this birth, from previous births, so many births. It's okay. I close all my chapters, all my accounts today. From today, I'll practice this every day for the next 1 month so that I can close all the chapters. I accept my life as it is. I do not judge. I accept my life as it is. I do not judge. I let life's event come freely to me.
मैं आगे आने वाली हर तरह की बातों को एक्सेप्ट करता हूँ, अपनी लाइफ को जज नहीं करता हूँ। एंड आई वेलकम द मैसेज दे कन्वे। जो भी सिचुएशंस आने वाली हैं उनके साथ के मैसेज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और ये पूरा विश्वास रखता हूँ, एंड आई बिलीव दैट God will always give me which is most appropriate. I believe that God will always give me which is most appropriate. I may not know what He's trying to tell, where He's trying to take me, but I accept it. I surrender. Whatever is happening to me, happening for a reason. ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ये जो बाधाएं हैं, ये जो डिटूर्स हैं, these all are taking me to the right direction. I just have to calm my mind. मुझे बस अपने मन को शांत करना है और इन सिग्नल्स को, यूनिवर्सल एनर्जी के सिग्नल को जानना है, ऑब्जर्व करना है कि वो क्या करवाना चाहते हैं। My plans are in the way of God's plans. I have experienced this in my life, that I was trying to do something to reach somewhere, and when it was not happening, I was introduced to a bigger thing, better thing. So I surrender. I see my life that I am happy right now. I am peaceful right now. I am vibrating at very high frequency. I am vibrating at love frequency. Wherever I am, whatever is happening to me, doesn't matter. No outside condition can stop me from thinking the best I can. Why? Because law of attraction works like this. It's not about what I want, it's about what I am. I am content, पूरी तरह से संतुष्ट। मुझे जो मिला है उससे पूरी तरह से संतुष्ट। I am content with whatever I have, wherever I am, and wherever I will be. I surrender. I surrender to the higher energy, spiritual energy. I do not know the rules exactly, but that's how things work.
I'll get to know, but from now on, no irritation, no disturbance, nothing. Like a river, just flowing, just flowing. Any obstacle coming, just changing my direction. No resistance, no irritation, no anger, no sadness, कोई दुख नहीं. Just like a river, नदी की तरह बहते रहना है. कोई प्रॉब्लम आए, सिचुएशन आए, उसे साइड से निकल जाना है. बस. My work is only to flow. So I have a very, very deep acceptance that everything and everyone will not be according to me. My life, everything in my life is not going to happen what I planned. No. My plans are in the way of God's plans. So better I give this command to spiritual energy, who is the best guide for me. My work every day, I have to ask spiritual energy what I have to do. Give me the signals. My mind is peaceful enough, pure enough to do what is right for me at that moment. Complete surrender. Think about so many galaxies of this world, and in those galaxies, there is one galaxy that even it is not in the middle, side पे, which is our galaxy. And in that galaxy, Milky Way galaxy, there is a star, sun, and there are planets, and we are in one planet. And in one planet, we live in a very small city or town, and we think that we can control this world. No. Surrender. Surrender to the higher energy. Get to know the rules. Till that time, leave it to them. Ask them for signals. Surrender. So जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, accepted. मेरी लाइफ में सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होगा. ये मेरे लिए डीप एक्सेप्टेंस है. अपने आप से बार बार ये बात करनी है सुबह उठते ही कि my day is going to be very beautiful. I'm going to meet people. I'm going to do what I love. But in the back of the mind, even something is not happening in my way. Some people, some person are not behaving my way. Results are not my way. It's okay. I accept it that everything is not going to be happening my way, what I planned. सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है. Thank you.
तो आप सभी ने मेडिटेशन किया, कैसा लगा आप सभी को ये करके? बहुत अच्छा लगा सर, वेरी नाइस। मेडिटेशन के बाद ज्यादा बोलने का मन नहीं करता है, बट लेट्स I just want to share a little chunk of my story with you. Till the time आप लिख भी सकते हैं कि आपको मेडिटेशन कैसा लगा. See, when I was working in Delhi, I was working as an engineer. तो बट जब जॉब करता था तो हमेशा माइंड में ये था कि आई वांट टू डू समथिंग विदाउट एनी एजेंडा, विदाउट थिंकिंग अबाउट कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे कुछ भी करना है. आई जस्ट वांटेड, मुझे ये विजुअल्स आते थे कि मैं कहीं गांव में जा रहा हूँ, छोटे बच्चों से मिल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उन्हें कुछ पढ़ा रहा हूँ. क्या पढ़ा रहा हूँ नहीं पता था, बट बिलीव मी, व्हेन यू आस्क माय कलीग्स, आई वाज वेरी हैप्पी इन जॉब आल्सो. ऐसा नहीं था कि वहां दुखी था, बहुत खुश था, बट आई हैड अ हायर पर्पस. कभी मैंने खुशी को नहीं छोड़ा, हैप्पीनेस को नहीं छोड़ा. यस, कभी कभी तो होता था, लेकिन कभी नहीं छोड़ा हैप्पीनेस को. एंड दैट वाज द रीजन कि आई कुड डू व्हाट आई वांट टू डू. आई कुड गो टू, वो सब चीजें रियल में होने लग गई. आई वांटेड टू स्टे, आई वांटेड टू स्टे इन द नेचर. आसपास ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, और नेचर हो, पहाड़ हो, पीसफुल हो. और मैं स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर, अलग अलग गांवों में जाकर लोगों को बता रहा हूँ. ये सब क्यों हुआ, ये सब का कारण एक ही था कि कंटेंटमेंट को नहीं छोड़ा. आई वॉज कंटेंट देयर ऑल्सो, इन सिटीज ऑल्सो. आई एम कंटेंट हेयर ऑल्सो. आई वॉज कंटेंट इन क्यूबिकल, जॉब करते हुए भी. आई एम कंटेंट इन दिस ओपन स्पेस ऑल्सो. सो पॉइंट इज कि जहाँ भी है, कंटेंटमेंट इज द ओनली वे. आप कहीं भी देखेंगे, देखिए, बिजनेस में बहुत से ये बातें हैं कि आप अट्रैक्ट करो, आप अट्रैक्ट करो. बट व्हाट यू फील व्हाइल यू आर अट्रैक्टिंग, अगर आप दुखी होकर अट्रैक्ट कर रहे हो कि मेरे परिवार का ये सुधर जाए, लाइफ सही हो जाए, माय फैमिली मेंबर ये सही हो जाए, किसी भी तरीके से गलत आदतें छोड़ दे, सोचकर अगर हम दुखी हो रहे हैं, सो यू आर नॉट जनरेटिंग पॉजिटिव एनर्जी, यू आर जनरेटिंग नेगेटिव एनर्जी. उसका फायदा नहीं होने वाला है. सो यूनिवर्स को, एनर्जीज को थोड़ा समझें, पॉजिटिव एनर्जी भेजते रहें, माफ करते रहें, अपने आप वापस आने लग जाएगा. क्योंकि यूनिवर्स में आपने पॉजिटिव एनर्जी भेजी, अपने आप वापस आता रहेगा. ठीक है. सो एक क्वेश्चन आया है, एक्सेप्टेड व्हाट यू सेड, ट्राइड विजुअलाइजिंग एवरीथिंग यू सेड, बट इंस्टेड ऑफ फीलिंग पीसफुल आई फेल्ट एंग्री. द माइंड एक्सेप्टेड, द हार्ट डिड नॉट थिंक. अ लॉट ऑफ सेल्फ वर्क इज नीडेड. एग्जैक्टली. माइंड एक्सेप्ट कर रहा है, दिल या इंटेलेक्ट, आई वुड से, अगेन वो बिलीव्स हैं हमारे इतने सालों के, ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है. माइंड आपको बोल रहा है बार बार, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, पैसे तो कमाना जरूरी है, ये जरूरी है, वो जरूरी है, खुश रहे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे. देयर आर सो मेनी बिलीव्स. उसे चुप करा के ये बोलेंगे, सुनो, लिसन, आज तक आपकी सुन ली मैंने, नाउ इट्स माय टर्न, आज से मेरी चलेगी. ठीक है. तो इसको प्रैक्टिस करेंगे. आई गॉट डिस्टर्ब व्हाइल डूइंग योग बट नाउ आई फील नथिंग, आई जस्ट वाचिंग ओवर इट विदाउट डिस्टर्बिंग मी. थैंक यू भाई. अगेन, डिस्टर्ब नहीं होना है, कुछ भी हो जाए. our mind diverted was family because many things to do for them. If we do not take care of ourselves, we will not be able to do anything for our family. Understand, there are two things. One is subtle and physical. Physical level पे help आप कर सकते हैं, खाना बना दिया, कुछ काम कर दिया. लेकिन सटल लेवल पे अगर दुखी होके कर रहे हैं, वो दुख के वाइब्रेशन जा रहे हैं और उसका फायदा नहीं होने वाला. राइट. सो एक्सेप्टेंस इज द वे. एंड लॉ ऑफ कर्मा को समझना है. अब कार्मिक अकाउंट खत्म कैसे होगा, क्लोज कैसे होगा? फर्स्ट इज फॉरगिवनेस,
इससे ऊपर ऊपर की लेयर जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद द मेडिटेशन हम अपने कार्मिक अकाउंट्स को बहुत जल्दी सेटल कर सकते हैं, बट उसके लिए ध्यान रखें इस यूनिवर्स को पॉजिटिव चीजें देना शुरू करें। इफ यू आर ईटिंग समथिंग बैड, तामसिक, राजसिक, प्लीज अगर वो भेज रहे हैं, अगेन यू आर सेंडिंग नेगेटिव थिंग्स टू यूनिवर्स। माइंड जो अट्रैक्ट करना चाहता है, माइंड जो विजुअलाइज करना चाहता है प्योर, वो नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, वो गलत सोच कुछ भी हो सकती है, बीट ऑफ एंगर, बीट ऑफ उसकी कमी देखना, बीट ऑफ लस्ट, वो कुछ भी हो सकती है। अगर आप वो है, इफ इट इज स्टिल देयर, अगेन वो कार्मिक अकाउंट जुड़ता जा रहा है, वो वन ऑन द अदर वे वापिस आएगा एंड वो कैसे भी आ सकता है। ठीक है, सो अगेन कार्मिक अकाउंट को समझें, पहले कार्मिक अकाउंट सेटल करें। हमेशा ये चीज पूरी पक्की कर लें, इसने मुझे बहुत हेल्प की है। मैं कुछ बैठा, मान लीजिए मैं मीटिंग करने के लिए बैठा और लेट्स से इससे ज्यादा जरूरी कुछ काम याद आ गया ना, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर बार बार माइंड को याद दिलाएंगे एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी माई वे, सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होगा। मैंने प्लान तो कर लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ के, अब ऐसे भी कि आज मैं ये करूंगा, बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ये चीज रखें, अगर ये नहीं हुई हुआ, इट्स ओके, इट्स ओके, माई लाइफ, माई पीस, माई हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस वर्क, दिस रिलेशनशिप, दिस मीटिंग, एनीथिंग। ठीक है, अपने आप को बार बार ये याद दिलाएं कि अगर लाइफ में भी जो मैंने प्लान किया था नहीं हो रहा है, इट्स ओके, मेरे कार्मिक अकाउंट का वो पार्ट है, कार्मिक अकाउंट बचे हैं। अगेन इट्स वेरी सटल, ये मत सोचो कि नहीं नहीं मैं तो किसी के बारे में गलत नहीं सोचता। ये स्टेज आने में बहुत साल लगेंगे, सो आराम से ऑनेस्टी के साथ, किसी को आपको प्रूव नहीं करना है, चेक विथ योरसेल्फ, बैठें, चेक करें, इतनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी कि आपने सोची भी नहीं होगी, राइट? तो उनको धीरे धीरे अब एक एक इंसान को ला के कर सकते हैं, बट इट इज वेरी टाइम टेकिंग। और बेस्ट क्या है, अपने आप को मेडिटेशन से कनेक्ट करेंगे, स्पिरिचुअल एनर्जी से, अपने अंदर कंपैशन, प्यार को इतना भरेंगे, अपने आप वो अकाउंट सेटल होते जाएंगे। जब अपने आप को भर लिया प्यार से, कंपैशन से, प्योरिटी से, तो वो इम्प्योरिटी अपने आप निकलती जाएगी, अपने आप आपके अंदर वो पावर आती रहेगी, राइट? सो एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क, वी हैव 10 मिनट्स सो वी कैन डिस्कस। मैं माइक ऑफ कर देता हूँ ताकि आपकी आवाज आ जाए। झनकार, व्हाट डू यू से, या कमेंट्स में ही इनके क्वेश्चंस ले? I think that will be better if we can share the questions on the chat and you can keep answering. ठीक है, So we can avoid background noise. यस यू आर राइट। सो कमेंट में ही लिखें। सो सारांश ने पूछा है, आवर माइंड डाइवर्टेड टुवर्ड्स फैमिली बिकॉज, ये तो हो गया। गार्लिक एंड अनियन कैन वी ईट? सी, मेडिसिनल, गार्लिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बट मेडिसिन हम रोज नहीं खाते हैं, राइट? बट अगर उस आपको गुस्सा ज्यादा आता है, इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं, ट्राई टू अवॉइड, एक महीना अवॉइड करके देखें, यू विल फील द चेंज इन योर सेल्फ, एंड आप खुद ही एक महीने बाद कहोगे कि नहीं रहने देते हैं, बिकॉज अनियन, गार्लिक का तामसिक, वो आपके उसको बहुत फ्रीक्वेंसी को, इमोशन लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगेन इसको आप समझें कि एक बार ट्राई करके देखें, बाकी यू आर कम्प्लीटली ओपन। दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस इज कि फूड का इफेक्ट पड़ता है, बहुत पड़ता है, 50% पड़ता है। तो अगेन आई वुड से कि अगर आपको मेडिसिनल के लिए चाहिए, सो ऐसा नहीं है, यू कैन ट्राई इट, नॉट एवरी डे, बट अगर आपको किसी ने रिकमेंड किया है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी गार्लिक की है, तो यू कैन हैव इट, ऐसा कुछ नहीं है, बट ट्राई टू रिड्यूस इट। मेडिसिन हम रोज नहीं खाते हैं, राइट? सो
a question we should not get disturbed. Also, if we have to work in middle of the meeting, we should see what we have to do first. मैं समझा नहीं question. We should not get disturbed. Also, if we have to work in middle of the meeting, we should see what we have to do first. Again, it's all about priorities. आपके लिए meditation जरूरी है तो आप बाकी काम छोड़ के करोगे. आपको लगता है कि खाना बनाना है 12 बज गए तो आप वो करोगे. But check कि क्या खाना 15 मिनट रुक सकता है, क्या खाना वेट कर सकता है या मेरी हैप्पीनेस वेट कर सकती है. ठीक है. सो अगेन वो आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं. सो एनी अदर क्वेश्चन? सो किसी को क्वेश्चन करना है और वी एंड दिस? या सो सी अगेन, जैसे कि हम दवाई लेते हैं, वी टेक मेडिसिन. वी डू नॉट टेक मेडिसिन आफ्टर ओनली वंस इन 3 days 4 days. अगर किसी चीज को हमें सही करना है, so again this meditation we have to do this how many times, you know, whatever is possible for you, do it. आप उसे करें क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करने में टाइम लगता है. शुरू में थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा. अगर 15 मिनट में 5 मिनट भी अगर आप कंसंट्रेट कर पाए, इट्स एन अचीवमेंट. अप्रिशिएट योरसेल्फ. धीरे धीरे बढ़ जाएगा. सो इस मेडिटेशन को, ये जो मेडिटेशन आज किया, इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. इसे दिन में 2 बार 3 बार करें. और प्रीवियसली भी जो 3 सेशंस हुए हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग है. एक्सेप्टेंस, प्रेजेंट में रहना, फोकस ऑन सेल्फ एंड फोकस ऑन गुड. मेडिटेशन करें और जब लोगों से मिलने में आए, यू नो, देयर इज एन इंट्रोवर्जन एंड देयर इज एन एक्सट्रोवर्जन. इंट्रोवर्जन, मेडिटेशन कर रहे हैं तब ये डीप प्रैक्टिस करें. सुबह के टाइम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उस समय आपका मन बहुत आसानी से लगेगा. सेकंड थिंग इज कि अगर जब लोगों से मिले, कर्म में आए, अब मुझे उसे एक्सपेरिमेंट करना है. अगेन फोकस ऑन सेल्फ. वर्चुअल ब्लाइंडर्स लगा लें. मेरे परिवार वाले क्या कर रहे हैं, मेरी मॉम क्या कर रही है, हस्बैंड क्या कर रहे हैं. नो. यस, डोंट थिंक दैट आई एम अ मदर, आई शुड लुक आफ्टर माय किड्स कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं. ठीक है, देखना है, बट अपनी लाइफ को उसी में ड्रेन नहीं करना है. Your life is different, their life is different. Remove those attachment. उन्हें करने दें, उन्हें सीखने दें अपनी गलतियों से. अपना फोकस अपने ऊपर. Am I happy? I'm not happy. Then there is no point. पहले खुद खुश हो जाएं, एक एग्जाम्पल बने. आप बच्चे को सिखाएंगे, गुस्सा होके सिखाएंगे, नहीं फर्क पड़ने वाला. बिकॉज यू आर टॉकिंग इन अ नेगेटिव इमोशन, वो भी नेगेटिव कोई चीज कर रहे हैं. दे आर गोइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट. बात नहीं, दिल को नहीं लगेगी. अगर दिल को लगानी है, पहले अपने ऊपर काम करें, पीसफुल हो जाए. फिर 10 दिन में एक बार भी बोलेंगे ना, बच्चा समझ जाएगा कि माय मॉम इज सो पीसफुल, सो हैप्पी, मुझे भी करना चाहिए. एक बार मान ही लेता हूँ बात. लव विल मूव इट, लव विल ट्रांसफॉर्म इट, लव विल इंस्पायर देम. सो अपने ऊपर काम करें. जो भी लाइफ की सिचुएशन है, कितनी भी बड़ी हो, आपके ऊपर है. पहाड़ को रुई बनाए, रुई को राई बनाए. ठीक है. सो हाँ, यस, तो वो तो आपको मिल ही जाएगी. सेलिबेसी कैन अफेक्ट. सेलिबेसी ऑफ कोर्स बहुत बड़ी चीज है ये. प्योरिटी, बिकॉज दे से प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस. बट आई टॉक टू यू पर्सनली अबाउट इट. जिसके भी कांटेक्ट में है, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा. आप मुझसे पर्सनली बात करना. ठीक है.
सो वन लास्ट क्वेश्चन किसी का है तो पूछ सकते हैं अबाउट टुडेस, आज के जो सेशन के बारे में जो भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। सो तब तक के लिए आपको होमवर्क मिल गया है। जो भी मेडिटेशन सुना उसे सिर्फ वन टाइम नहीं, उसे बार बार करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे आज की मैंने बात की, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी माई वे, उसे बार 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 माइंड में लाएं, सो दैट जब सिचुएशन आएगी, जब कोई मुझे गलत बोलेगा, गुस्सा करेगा, तो मेरा माइंड क्या बोलेगा मुझे, इट्स ओके, सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। will give you the immense peace, immense power to face that situation. ठीक है। So next question is, खुशी कभी कभी कम होती है तो सुबह उठने में दिक्कत होती है, what should I do? बैठ के रियलाइज करें कि जो मेरे पास है, जो मुझे मिला है, बहुत ज्यादा इनवैल्यूएबल है, उसकी कोई, उसको किसी चीज से कंपेयर कर ही नहीं सकते। बार बार करना पड़ेगा, अगेन बार बार माइंड को बताना पड़ेगा कि आपको जो मिला है ना बहुत ज्यादा है, खुश रहने से भी बहुत ज्यादा है, हमेशा खुश रहो। ठीक है। सो कैन यू टेल अस मोर अबाउट कार्मिक, व्हाट इट इज एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस? अगेन सी हम क्या करते हैं कि व्हाट आई लर्नड इज कि हमने वर्ड्स पे तो शायद ध्यान दे दिया क्योंकि वो दिखते हैं, दिखते मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो निकल जाते हैं किसी के सामने, एक्शंस दिखते हैं, बट थिंकिंग, हम सोचते हैं थिंकिंग तो दिखती नहीं, बट दे से योर एनर्जी इंट्रोड्यूसेस यू बिफोर यू स्पीक। किसी इंसान से मिलके अच्छा लगता है, किसी से मिलके बहुत अजीब सा लगता है। सो पॉइंट ये है कि जो हमारा कार्मिक है, हमने गलत सोच के, एंड इसके लिए थोड़ा डीप जाना होगा, आगे हम डीप में जाएंगे कि दिस इज नॉट अबाउट दिस बर्थ। सम ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इस बर्थ में तो कुछ नहीं हुआ, इस बर्थ में तो मैंने नहीं किया गलत, फिर वो ऐसा क्यों? नहीं, वी हैव टू गो बैक टू आवर प्रीवियस बर्थ। गो बैक मीन्स सोचना कि शायद कुछ गलत किया होगा, वही वापिस आ रहा है। सो सेटल करना है मुझे। सेटल कैसे होगा? हैव प्योर फीलिंग्स फॉर एवरीवन। चाहे कोई कितना भी गलत बोले, मुझे कार्मिक अकाउंट नहीं जोड़ना है, मुझे और कार्मिक अकाउंट में उसे बढ़ाना नहीं है, मुझे क्लोज करना है, नया अकाउंट खोलना है और उसमें प्योर। वो कैसे होगा? वो बार बार प्योर फीलिंग्स, फॉरगिवनेस, इट्स ओके, गुस्सा ना करके, राइट? सो इससे क्या होगा? इससे हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल होता रहेगा, तो हमारे अंदर इतनी पावर बढ़ती रहेगी कि जो भी सिचुएशन आएगी उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और हमारे साथ जो हुआ है, अगर कुछ गलत भी हुआ है, अगर कुछ बीमारी भी है, इफ देयर इज एनी डिजीज, थिंक इट एज माई कार्मिक अकाउंट एंड स्टे हैप्पी that yes, my karmic accounts are getting settled। बस ये लास्ट है, इसके बाद सब कुछ परफेक्ट होने वाला है। जल्दी जल्दी ये हिसाब किताब, ये अकाउंट सेटल कर रहा हूँ विद हैप्पीनेस। करने तो है ही सेटल, या तो दुखी होकर या खुश होकर। सो लेट्स डू इट विद एक्सेप्टेंस एंड लव। करते रहेंगे, हमारे अंदर वो पावर आती रहेगी और फेस करने की पावर आती रहेगी। हम सब ने देखा है कि लोगों की लाइफ में कितनी एडवर्स सिचुएशन होती है। अनुरिमा सिन्हा, उनके पैर कट गए थे, स्टिल वो एवरेस्ट चढ़ गई। सो अगर माइंड में हमारे इतनी पावर बढ़ जाए, वी कैन फेस एनी सिचुएशन एंड वी कैन टॉलरेट इट एंड वी कैन रिमूव इट। सो नेक्स्ट सेशंस में हम सीखेंगे एनर्जी बची, नाउ हाउ टू हील आवर सोल, हाउ टू हील आवर बॉडी, उससे बीमारी भी कैसे हील कर सकते हैं, आसपास लोगों को भी कैसे हम पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, अपने घर को कैसे पीसफुल बना सकते हैं कि कोई भी वहां पे आए उसके नेगेटिव चलना बंद हो जाए, पीसफुल हो जाए, प्यार के वाइब्रेशंस वहां पर फैले, राइट?
So ठीक है. So let's end it and let's meet on Tuesday again. तब तक के लिए आपको होमवर्क करना है. दवाई डॉक्टर से लेते रहेंगे, दवाई नहीं लेंगे तो असर नहीं आएगा. ठीक है. So thank you. मैंने माइक हटा दिया है. So झनकार, you can speak. So thank you again for giving me the. Thank you, sir. I'll end the session. Thank you, everyone. We'll see you all on Tuesday. Okay, thank you. See you.